by and large there for an audience, and I hope they like it. So, first biopic on Captain Cool in the country. I hope there's only one. I hope, and there should be only one. The kind of pressure or the kind of thing that you went through while making the film. What was going on through your system? No pressure at all. I mean, it's a fabulous story. It was all in place. He's already lived that life, so it was pretty much easy to just put it on paper and then go ahead. I think Sushant here had a tougher job to do. He had to transform himself into, model himself into this personality next to him. And thankfully, he was by default not doing anything at that point of time. He had the time and the appetite to sort of work hard, train hard, and deliver what you guys saw just on the screen. But so very importantly, what are the things? It says the untold story. So what did you discover? Something that we don't know. We would like to see the film, to see the untold story. सर एक ऐसा कुछ आपको पता चला है जो किसी को नहीं पता है. मतलब how do you want? अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपको अभी बता. हाँ थोड़ा सा बता सकते हमारी जनता. I'm sure you all want to know. Okay, he's not that big a milk lover as you guys think he is. Thank you very much, sir. Well, the moment. Mahendra Singh Dhoni. So it's been 24 hours. So first of all, honor, privilege to stand in front of you. I think I'm very nervous right now. But so 24 hours. So you've done the city tours and more than 1,500 kilometers. How does it feel with the kind of euphoria that you get everywhere that you go? Well, to start off, sorry to keep you guys waiting. Sorry for that. The moment you mentioned 24 hours, I was like, no, we didn't delay it for 24 hours. So you guys are not waiting for 24 hours. But yes, to start off, sorry for the delay. And as far as the promotion of the movie is concerned, yes, we have been to 3 different cities, including Mumbai now, and the kind of response what we have got so far is just fantastic. Jalandhar was brilliant, followed by Delhi, former school of Sushant, and I feel we have got very good reception each and everywhere. As far as going through the process is concerned, it's very tough. Frankly speaking, the only good thing, we don't have to walk 1,500 kilometers. You have clients and you can take all of that. But yes, a lot of things get delayed because of the weather and everything. But as far as just the promotion is concerned, I'm very happy that I'm part of it. I have time to be part of it. And more than that, hats off to all the film stars, who do it on a regular basis, and they actually do it for 15-20 days before the start of the movie, before the movie gets launched. So I think it's a fantastic effort on their side, and we all need to appreciate it. That the amount of effort they put in, leave getting into the character part, acting and everything. It's just that the amount of effort that is put in to make a movie successful. So आपने reception की बात बोला था, दिल्ली जलंधर की बात, लेकिन आमची मुंबई तो आमची मुंबई. Come on! Mumbai is a very special place. Oh, Captain, hold on. Mumbai, if you see, is a very special place. 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20. And once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. That anxiety of being with the family is there. So we are about to land, and I think it was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, you know what, it seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain that nothing will happen, we'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and we'll be off. But I was completely wrong. We just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking.
I had to put it like that. And after a while I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus, and right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road and they were so happy. A lot of them would have missed their flight, but still, the cars were parked, all of them were outside, and they had a smile on their face. That's an amazing feeling, because that was the first time you saw like a swarm of people and all of them were happy. It was raining, the mobile phones were out, everybody was taking pictures and everything. So that was the 2007. I don't think I need to talk about 2011. It's just that, we were a bit late for you, so that whole thing of, Mumbai, it actually slipped, and I was more concerned about, being late for the launch. Come on, guys, let's give it an oh! Come on, guys! It's very real films and all of that, and there's a big responsibility of portraying your life. आपकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है इस फिल्म के जरिए, आपको कैसे लगता है ये जो अमेलगमेशन हुआ है फिल्म का और आपकी लाइफ का? आप थोड़े से वरीड हैं, कैसे लग रहा है आपको, क्या फीलिंग है? No, I'm not worried at all. I have confidence in all the crew who has worked in the movie, Neeraj especially, right from the start. The good thing was we were on the same page. Because I've seen quite a few of his movies, and I like how he puts things on screen. And I think right from the very start we were clear, we don't want to make a movie which, makes me a hero or glamorizes me. It was more about the journey, so that people can, relate to it. Because we all go through almost the same thing. Okay, everybody doesn't play for India, but at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. So it's all about that, the small things. Yes, people know a lot about me. I played football. I was from a particular school. I got a job with the railways, and I moved on and all of that. But what happens in between that is what really, pushes me or transforms me to what actually I am today. So the movie is more about the journey and, how I deal with everything, because I keep saying, be in the present, but the movie in a way will actually show what all happened that actually helped me be in the present, or that taught me to be in the present, and how being in present really helped. So a brilliant blend इस मूवी के जरिए क्रिकेट एंड अब बॉलीवुड हो रहा है, तो आपको लगता है क्रिकेट को एक अच्छी और ज्यादा ब्राइटर लाइट में दिखाएगा इस फिल्म के जरिए, आपको लगता है? Well, I mean, it will be like telling you the inside. I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it. And cricket is a part of the movie. Like how I keep saying, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. It's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So, it's not only cricket. So, हमने देखा कि आप प्राइवेट पर्सन हैं, आप ज़्यादा जैसे कहते हैं आप you're not very loud. आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए. आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि आप सबके सामने आप पूरी इंडिया देखेगी, भाई पूरी दुनिया देखेगी अभी ये फिल्म? It's a bit awkward, to watch your own movie. A movie that's made on you, it's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा, जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है, तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा हूँ, जिसके लिए इसने मुझे बहुत बुरेगा है. उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था, मैं बोला कि सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि
रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफकोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती है, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं। सर हेलीकॉप्टर शॉट सर, मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका। नीरज तो आया, नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर। सो यू नो नीरज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला, आई थिंक इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और आई फेल्ट यू नो जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफी सारे मेरे दोस्त हैं, काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज बिकॉज काफी चीजें हमने एक्सचेंज की है, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी, यू नो मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, ये सारी चीजें हैं जो कि ये बहुत ज्यादा जानते हैं। तो you know, if you can convince him for an interview, you will get a better interview than you know really asking me a question, क्योंकि मैं काफी बार बोल जाऊंगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सो बहुत ही स्पेशल है मुंबई आपके लिए, टीम इंडिया के लिए। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से। नहीं लास्ट मतलब टेंशन मत लो, सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से। सो one message to all these fans, all these Mumbaikars who are gathered here. I think for me, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई इज वेरी डिफरेंट प्लेस, यू नो हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है, मैं फॉर्चुनेट कि मैं चेन्नई में 8 साल खेला, 7 साल खेला, तो वहाँ की कल्चर को समझ पाया। मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है शूटिंग्स वगैरह में। आई थिंक यहाँ का जो कल्चर है वो एंटायरली डिफरेंट है, यू नो पीपल आर वेरी फोकस्ड इन व्हाट दे डू, एंड यू नो द कल्चर इज ऑल्सो हाउ दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड इन लाइफ, यू नो हाउ दे आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट वेरी इंक्लूसिव। यू नो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जैसे इफ यू आर अ सेलिब्रिटी आप बाहर जाके घूम भी सकते हो, लोग आएंगे दे आस्क यू फॉर पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, अगर आप बोलो नहीं अभी थोड़ा प्लीज छोड़ो, दे हैप्पी, ओके थैंक यू, दे विल मूव ऑन। सो आई फील दैट्स द एसेंस ऑफ मुंबई, एंड आई फील दैट समथिंग दैट नीड्स टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज मुंबई जहाँ तक जमीन की बात है तो फैल नहीं सकता है, पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियां फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा। So you know that patience level needs to go up, but at the same time, you know, everything else needs to be there at the same time. Thank you, sir. Thank you so much, Sushant. Good man. Good man. Hello everyone, this is Nimish and today we're going to do the trailer reaction to MS Dhoni The Untold Story. This movie stars Sushant Singh Rajput and is produced by Foxstar India. This is of course the story of MS Dhoni, one of the greatest captains India ever had, and we as fans, we know about him, we love him, but we really don't know much about the details of his journey, and that's what this particular movie seeks to address. So let's go and check the trailer out. Here we go, MS Dhoni. सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन डीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन में, और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना तो हमको आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कब तक और कैसे चलेगा सर? I didn't know he was a DC, by the way. अच्छा गोलकीपिंग करता तू, विकेट खेलेगा? सर हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो, तुम समझा? खेल कूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें, अगला मैच में देखेंगे। सर वीक टीम के साथ स्कोर Oh wow, हम इस लड़के को जानते हैं। they made him look very small. खाम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस।
का गेम दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? परसों से ही ऑफिस लीग का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। अरे एग्जाम तो दोगे ना? पास जितना लायक हो जाएगा। धोनी कोई तेंदुलकर है? नहीं बाजी, धोनी धोनी है। एक बार उस लड़के को मौका मिल गया ना तो बहुत आगे तक जाएगा। 1500 का स्टाइपेंड है। आज तक किसी ने प्लेयर को इतना स्टाइपेंड नहीं मिला जितना मई को मिलेगा। अपना माई डीसी बन जाएगा माता के आशीर्वाद से। अगर तूने अच्छे से नौकरी की तो रेलवे में एक दिन RM भी बन सकता है। अगर माइया का इतने से मन नहीं भरा तो मतलब? हमारा मन कहता है ये थोड़े से में खुश होने वाला नहीं। Oh, there's the long hair. ड्यूटी के बाद रोज प्रैक्टिस, जितना ड्यूटी उतना प्रैक्टिस। नेक्स्ट 3 बॉल कीपिंग के लिए बुलाया और 1 ओवर बैटिंग दिया। सबके साथ ऐसा किया? नहीं, हमसे ही कुछ खास लगा। अरे ये कौन जीनियस लोग हैं जिन्हें सिर्फ 3 ही बॉल में प्लेयर का पोटेंशियल पता चल जाता है? तो उधर खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गया ना बाबा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। Wow, that looks really good. ये तीनों अब ODI टीम में फिट नहीं बैठ रहे। जो धोनी को प्रमोट करता है, धोनी उसी को आज बाहर करना चाहता है। ये इन तीनों को निकाल के रुकने वाला नहीं है। We are all servants and we are all doing national duty. Wow. थोड़ा सा बैटिंग दोगे क्या? हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। Oh, the helicopter. Finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Wow, that looks stunning. That looks really, really good. I particularly say this and I'm particularly impressed because very recently a movie called Azhar released on the life of Muhammad Azharuddin. And although I thought that movie was going to be very good, it was of course a very dramatic and dramatized. And so at the end of it, I didn't enjoy it as much as I should have. But this looks very real. This stays true to what it seeks to achieve. It wants to tell the story of the man. It wants to show his journey. I personally, as a fan, didn't know he was a ticket collector. I didn't know about the hardships he must have gone through in terms of family, not encouraging to become a cricketer and anything of that sort. So this is great. This is an insightful movie. It's something that will make all of us look into the lives of MS Dhoni. And as fans, as people, we often have opinions. Some of us don't like Dhoni, some of us like Dhoni. We just judge from what we see on the stadium, on our television screens while he's playing cricket, and very random judgments we make. But here we have a full-fledged story on his life where we can actually get a sneak peek into what he is like as a person. I would also like to say that the cricket matches shown in this movie seemed very real. It seemed like I was actually watching a cricket match on TV. It was not one of those super CGI stadiums and, you know, where only the pitch seems real and everything else seems fake. The whole thing seemed like a real match was going on, and it's crazy. At one point when he turned wearing the Indian jersey, he also looked like Dhoni, his side profile, so I guess the casting is also fantastic. Also, I would like to say that he's probably put a lot of effort in learning all those helicopter shots and the typical styles of Dhoni's cricket, which is great. It looks fantastic, and I'm very excited to watch this movie because it not only stops at where he becomes a cricketer, but they also had a couple of scenes where he is a cricketer. Probably he's the captain and he's talking about the team and how to better the team and get players out or in. So it'll give us a good insight right from his childhood to the time he probably, you know, lifted the World Cup as the trailer ends, and how successful he was. So this is a great trailer. I loved it. I think Sushant Singh is an absolutely fantastic actor. I loved him in Byomkesh Bakshi, Detective Byomkesh Bakshi, and also the director is Neeraj Pandey, which is fantastic, and it has a great cast, great supporting cast, so looking forward to this one. I hope you like this reaction and review. Let me know what you guys think about the trailer. Like, comment, share, subscribe, and keep watching. Hello, good evening, Mahi sir, good evening, Sushant sir, here.
Myself, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off. Long on. नहीं, जहां तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंड स्कोर हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो ऐसा कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले वो 3 बार ऐसा हो चुका है। मैं सोचा अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है, वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई, खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। तो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। Hello, Mike. This is Rahul. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi, sir. Sir, इधर. अरे ये हटना. Sir, first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल बिल्कुल ओके, सॉरी हाँ। तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो। अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स व्हाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे, और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहां तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूं, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है, और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया
बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आगे क्या? आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you, it's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है. इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर. सो नीरज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफी सारे मेरे दोस्त हैं, काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफी चीजें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया. ये सारी चीजें हैं जो कि ये बहुत ज्यादा जानते हैं. तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफी बार बोल जाऊंगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट Hello, good evening, Mahi sir. Good evening, Sushant sir. Here. Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off. Long on. नहीं, जहां तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था. और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंड स्कोर हो गया. बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट
जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसा हो चुका है। मैं सोचा अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता, बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाली शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है, क्यों इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। तो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। हेलो भाई, दिस इज राहुल। आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie, movie that's made on you. It's a bit awkward to be frank, but at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूंगा, मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट। बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो, रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं। सर हेलीकॉप्टर शॉट सर। तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका। सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने। एंड नीरज तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर। सो नीरज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। आई थिंक इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफी सारे मेरे दोस्त हैं, काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफी चीजें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी। मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, ये सारी चीजें हैं जो कि ये बहुत ज्यादा जानते हैं। तो
you know, if you can convince him for an interview, you will get a better interview than you know, really asking me a question, क्योंकि मैं काफी बार बोल जाऊंगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, but